Yeah, hi guys, this is Navdeep here. In the last lectures, we discussed about the Vijayanagar Empire in detail. Okay, so this lecture, I will be discussing about the Bahamani. I told you कि both Bahamani and Vijayanagar Empire they proclaimed their independence after Muhammad bin Tughlaq shifted his capital back from Dolatabad to Delhi. Okay, so once he shifted his capital back, these Bahamani and Vijayanagar Empire they proclaimed their independence. Okay, so ab who was its founder? This is the main question. Who was its founder? It was dominated mostly by Muslims. Vijayanagar was by Hindus, but it was tolerant. Okay, but Bahamani kingdom was established by Muslims and it was majority Muslim empire. Okay, so one thing you must remember here is that it was established by Alauddin Hassan Bahman Shah. Okay, his full name was Alauddin Hassan Bahman Shah. Okay, so he was like a governor to the Muhammad bin Tughlaq when he left Dawlatabad. He proclaimed his independence. He is also known as Hassan Gangu. Okay, and he is also known as Bahman Shah. Okay, so he proclaimed independence and established the Bahmani kingdom in 1345. Okay, and he this dynasty of Bahman Shah, this Bahmani kingdom, it survived for 2 centuries. Okay, Dawlatabad was where Muhammad bin Tughlaq kept his capital, but he kept his capital at Gulbarga. It's in modern in Karnataka. Okay, so he also became king after revolting against Muhammad bin Tughlaq. Okay, but one thing here was different that he had to survive. He had to fight with various troops of Muhammad bin Tughlaq that he has left once he changed his capital back to Delhi. Okay, so his fighting was against Muslim troops that Muhammad and Tughlaq has left behind, plus Hindu rulers of Odisha and Varangal, of course. And he was also nearby. He was also in constant, we can say that in constant conflict with the Vijayanagar Empire. Okay, so both these Bahmani and Vijayanagar Empire they were contemporary to each other. Okay, and they knew one thing. They knew that they were the enemies of each other. Why they were enemies of each other? The reason was I told you about the Raichur Dua, a fertile land between the two kingdoms. Okay, so more fertile land means more revenue. Okay, so this Raichur Dua, I told you, this lies between River Krishna and Tungrabhadra. Okay, so they were constant in conflict uh, with this Raichur Dua. Other thing was that Bahmani kingdom had the control over Golconda. Okay, and Golconda is known for its diamond mines. Golconda is known for its diamond mines. This Bahman Shah, this Bahmani kingdom, Bahman Shah, they had this control over Golconda. Thus, the prosperity of the Bahmani kingdom was, you know, it was very prosperous. लेकिन अब जो चीज यहाँ पे आती है कि गोलकोंडा पे अगर कंफ्लिक्ट था तो कहीं ना कहीं विजयनगर भी इस पे कंट्रोल करना चाहते ओके सो इट इज सेड that this Bahman Shah he was actually a servant of a Delhi Brahmin called Gangu. That is why he is also called as Hassan Gangu. ओके तो ऐसा कहा जाता है कि जिस हसन जब एक दिन जमीन खोद रहे थे फाउंड ए लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स ओके एंड इसको तो पहले ही एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि ही विल वन डे बिकम ए मास्टर ओके तो इसी पैसे से वो अपनी फोर्स खड़ी करते हैं ही बिकेम वी कैन से गवर्नर
ओके, सो जब टाइम आया रिवॉल्ट का, व्हेन द दिस दिल्ली सल्तनत वाज गेटिंग वीकन अंडर मोहम्मद बिन तुगलक, तो ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. ओके, सो he had promised his Brahman, जब he got a lot of gold, that he will always remember his promise that he made a promise to his Brahman. जब ये सोना इनको मिलता है, तो ये अपने जो इनके ब्राह्मण मास्टर्स थे जिसके लिए ज़मीन खोदते थे, इनसे इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने जो अपने जो सुपीरियर होगा उसका हमेशा मैं आदर करूँ. ओके, सो ही तो जब ये भावनी किंगडम के फॉर्म करते हैं, भावनी किंगडम को, जब दौलताबाद को अपना कैपिटल, दौलताबाद से अपना वरंगल, सॉरी, जिस बिदर वाली जगह आके गुलबर्गा को अपना कैपिटल बनाते हैं, तो ये उसी जिस ब्राह्मण के पास ये काम करते थे, जिसकी ज़मीन खोते टाइम इनको गोल्ड कॉइन्स मिले थे, उनको बुलाते और उनका अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाते. ओके, सो इट इज सेड कि इसने जो अपने नाम के पीछे जो गंगू लगाया था, इट वाज ऑनर्ड दैट ब्राह्मण. ओके, अब यहाँ देखते हैं. सो हमें ये याद रखना है कि फ्रॉम 1347 टू 1425 भावनी किंगडम का जो कैपिटल था, इट वाज गुलबर्गा. लेकिन बाद में 1425 में इट वाज शिफ्टेड टू बिदर. बिदर इज ऑल्सो इन मॉडर्न डे कर्नाटक. ओके, सो हसन गंगू के जाने के बाद ही दे हैड मेनी रूलर्स. ओके, लेकिन इनके सक्सेसर्स इतना ज़्यादा अंपायर को फैला ना पाए. ओके, जितना ब्राह्मणी किंगडम स्टार्टिंग में था जब एस्टेब्लिश हुआ, उतना ही रहा. ओके, अब कहीं ना कहीं इसकी जो इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो थी वो नाकाम हो रही थी. इसके पीछे विजयनगर के किंगडम के रूलर्स का भी हाथ था. भामनी किंगडम के नॉर्थ में, अगर आपको पता है, मैप देखेंगे आप, देयर इज गुजरात एंड मालवा. विजयनगर हैड अलायंस विद बोथ. अब जब उनका अलायंस था, तो दे वर आल्सो कीपिंग ए चेक ऑन द भामनी सुल्तान्स एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी. ओके, किंगडम प्रॉस्पर करता है 1425 तक. 1425 के बाद ये बिदर अपना कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं. लेकिन उसी टाइम पे उड़ीसा, मॉडर्न डे उड़ीसा में एक डायनेस्टी आती नहीं, जिसे कहते हैं सूर्यवंशा डायनेस्टी. वी विल डू इट इन डिटेल ऑल्सो. ये सूर्यवंशा डायनेस्टी इनके ऊपर कांस्टेंट अटैक करती रहती है, भामनी किंगडम के ऊपर. ओके, तो इससे इनका जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो. ओके, तो इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो. ये अभी तक एक बैकग्राउंड थ्योरी थी. अब इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने लायक है, जैसे हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर, वेरियस फॉरनर्स. मैंने आपको उनकी एक डिटेल दे दी थी. ऐसे ही भामनी किंगडम में एक रशियन ट्रेवलर आए थे, निकितिन. वो 4 साल ये लोग 1470 से लेके 74 तक ये भामनी किंगडम में रहते हैं. एंड इनका जो अकाउंट है वो एक डिटेल अकाउंट हमें मिलता है अबाउट द मिडाइवल इंडिया. ओके, अब उसके बाद हम करते हैं मोस्ट फेमस रूलर. मोस्ट फेमस रूलर जो इनका था, इट वाज महमूद गवान. ओके, इसके इनके टाइम पे द एम्पायर वाज एट जिनिथ. मैक्सिमम एम्पायर इनके टाइम पे था. लेकिन इनको एग्जीक्यूट किया जाता है, मोहम्मद शाह थर्ड इनको एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, व्हाई? बिकॉज देयर वाज ए राइवलरी बिटवीन डेक्कन मुस्लिम्स एंड अफगान मुस्लिम्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भामनी एम्पायर. एंड उसमें जो डेक्कनीज थे, मोहम्मद शाह, ही एग्जीक्यूटेड मोहम्मद गवान. ओके, अब जब मोहम्मद शाह इन्हें मार देते हैं, तो जो भामनी किंगडम ये 5 हिस्सों में टूट जाती है. इट ब्रोक इनटू 5 स्मॉलर किंगडम्स. सबसे पहली जो किंगडम थी, इट बिकेम आदम शाही, जिसे अब अहमदनगर है. सेकंड, आदिल शाही.
बीजापुर के, कुतुब शाही गोलकोंडा के, ब्रिश शाही बिदर वाले एंड इमाद शाही बेरार के। लेकिन ये जो बेरार वाली किंगडम थी इमाद शाही, इसको बाद में यही अहमद शाही वाले नेक्स्ट कर लेते। ये क्या थ्योरी थी, कैसे नेक्स्ट करते, दैट आई विल डिस्कस लेटर। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि जब ये एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो इट ब्रोक इनटू 5 न्यू स्मॉल किंगडम्स, अहमद शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही, बरीश शाही, इमाद शाही। ओके, ये कैसी थी कि जो बीजापुर, अहमदनगर, आपकी बेरार जो स्टेट्स थी, दे प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंस। फिर गोलकोंडा भी इनसे अलग हो गए। बहामनी किंगडम के जो लास्ट किंग थे, इट वाज कलीमुल्ला, इट वाज कलीम। ओके, तो ये देखिए आप, विजयनगर एम्पायर, बहामनी एम्पायर। यहाँ उड़ीसा से इन्हें कांस्टेंट कौन कर रहे थे, सूर्यवंशी इन पे अटैक कर रहे थे। यहाँ पर तो स्टेटस को था। ओके, अब ये जो 5 छोटी किंगडम्स बन गई, यही बाद में अटैक करके विजयनगर को डिस्ट्रॉय किया। ओके, यहाँ पे गुजरात और डेक्कन, अगर आप देखेंगे ये वाला रीजन, ये कॉन्स्टेंटली इसको चेक रख रहे थे कि बहामनी यहाँ से एक्सपेंड ना कर जाए। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे वर इन अलायंस विद विजयनगर, इसलिए ये इतना ज़्यादा कोई फैला नहीं यहाँ पे। दिस इज रायचूर द्वार। ओके, तो ये बात है। इट इज सेड कि ये जो मोहम्मद गवान थे, इन्होंने जो विजयनगर ने जो कैप्चर किया था गोवा को, मोहम्मद गवान उसे वापस कैप्चर करते हैं गोवा को। ओके, यहाँ देख लीजिए, और अपनी किंगडम को कोस्ट टू कोस्ट ले जाते हैं। ये एक कोस्ट, ये दूसरा कोस्ट। ओके, मोहम्मद गवान के टाइम पे एक तो स्ट्रेच आपका कोस्ट टू कोस्ट हो चुका था, जस्ट ट्रेड ज़्यादा थी, यू हैड पोर्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स। दूसरी बात ये थी कि ही हैड ए वेरी एफिशिएंट फाइनेंस। ओके, तो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया था कि मोहम्मद शाह थर्ड इनकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर कर देते हैं। फिर वो भी जब जानते हैं कि मैंने मिस्टेक कर दिया, वो भी खुद मर जाते हैं सदमे में शराब पी पी के। ओके, तो यहाँ से बहामनी सुल्तनत एंड। ओके, गवान के डेथ के बाद व्हाट वी सी दैट इंडिजिनियस मुस्लिम्स एंड जनरल्स, जैसे मैंने आपसे कहा था, डक्कन वर्सेस डक्कन मुस्लिम्स वर्सेस अरब एंड बाकी जो फॉरेन मुस्लिम्स, उनके खिलाफ टग ऑफ वॉर हो जाती। ओके, सो दिस वाज ओवरऑल। सो बीजापुर किंगडम जो थी, दे नेक्स्ट लेटर बिरार एंड बिदर ऑल्सो। अहमदनगर, गोलकोंडा ने अपनी इंडिपेंडेंस जो थी एंड तक रखी थी, एंड दे फाइनली जॉइंड विद द बीजापुर। व्हाई? अगेंस्ट टू डिफीट विजयनगर। ओके, अब जब वॉर होती है, बीजापुर जो गोवा वापस पोर्तुगीज से हार जाते हैं 1510 में। लेकिन 1565 आते आते they all these Deccan kings, they started the attack on Vijayanagar. Okay, so they all started the attack with the Vijayanagar. ये डिवीजन है जो बनता है। अहमद नगर, निज़ाम शाही इसके रूलर थे, बीजापुर के आदिल शाही थे, बेरार के इमाद शाही थे, बिदर बरीद शाही, ओके, गोलकोंडा कुतुब शाही। ओके, अब भामनी किंगडम में काफ़ी आर्किटेक्चर भी था, नॉट टू द मैच ऑफ द विजयनगर, बट दे बिल्ट जामा मस्जिद ऑफ गुलमर्गा। इन्होंने एक मदरसा बनाया बिदर में, पर्शियन स्टाइल। ओके, वन ऑफ देयर मोस्ट remarkable architecture is Gol Gumbaz of Bijapur, which is the largest dome in the world. Okay, so this is what happened. अब हम आ जाते हैं जो
डेक्कन सल्तनत इनके बाद खड़ी हो चुकी थी जब बहामनी के किंगडम स्प्लिट हो जाते। जैसे मैंने आपसे कहा जो किंग बनते थे वो निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर, कुतुब शाही ऑफ गोलकंडा मॉडर्न डे हैदराबाद, बरीद शाही मीन्स बिदर, इमाद शाही ऑफ बिरार, आदल शाही ऑफ बीजापुर। इन सब पांचों जो इनके बहामनी किंगडम जब पांच में टूट जाती है, ये पांचों को कहा जाता है डेक्कन सल्तनत, डेक्कन सुल्तान सल्तनत। दे फॉर्म द डेक्कन सल्तनत एंड दिस डेक्कन सल्तनत ये स्ट्रेच करती है आपके कृष्ण रवर से विंध्या रेंज तक। ओके, सो इट वाज फ्रॉम कृष्णा रवर, यानी आप रायचूर दुआ वाला यहाँ वाला देख लीजिए टू विंध्या रेंज, दिस ऑल रेंज, दिस टू विंध्या रेंज हियर, दिस ऑल वाज द डेक्कन सल्तनत। ओके, सो अब जैसे मैंने आपसे कहा था दे फॉट ए बैटल, दिस डेक्कन किंग्स दे फॉट ए बैटल अगेंस्ट विजयनगर, दैट बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ टेलीकोट। अब थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ दिस बैटल ऑफ टेलीकोट। ओके, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले विजयनगर की थोड़ी सी हिस्ट्री में जो हम पढ़ चुके हैं, उसी को अभी थोड़ा और करना पड़ेगा हमें रिकॉल। कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है 1529 में एंड इनके ब्रदर अच्युत राय जो है वो सक्सीड करते हैं। ओके, लेकिन अच्युत राय के टाइम पे दे ही डिडंट फेस एनी थ्रेट फ्रॉम द डेक्कन सल्तनत। ये इनको सक्सीड करते हैं वेंकट राय, लेकिन वेंकट राय को मार के सदाशिव राय जो है वो किंग बन जाता है 1542 में। लेकिन सदाशिव राय वॉज नॉट ए प्रॉपर किंग। क्यों? क्योंकि इनके एक मिनिस्टर था जिसका नाम था राम राय, राम राय। ओके, तो ये जो राम राय था ही वॉज अ रियल रूलर। ओके, एंड इट इज सेड दिस राम राय रिस्टोर्ड द ओरिजिनल जो ग्लोरी थी एम्पायर की जो कृष्णदेव राय के टाइम पे थी, ही अचीव द सेम। ओके, तो राम राय की स्ट्रेटजी डेक्कन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सिंपल थी। ही वांटेड डेक्कन सुल्तान्स टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर, इसलिए कभी एक के साथ अलाय कर देते थे, दूसरे को लड़ाते थे, कभी दूसरे के साथ करके तीसरे को लड़ाते थे। लेकिन 1563 आते आते डेक्कन सल्तनत न्यू कि ये राम राय की स्कीम इज फूलिंग अस। तो 1565 आते आते ऑल द डेक्कन सल्तनत की जो फोर्सेस थी वो ज्वाइन कर देती। ओके, एंड दे फॉट अगेंस्ट द विजयनगर आर्मी। ओके, विजयनगर की आर्मी बहुत वास्ट थी। ओके, सो इन्हें लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन दिल्ली सल्तनत जितने भी रूलर्स थे उन्होंने डील की थी मुस्लिम जनरल्स के साथ जो विजयनगर के थे, जिन्हें गिलानी ब्रदर्स कहा जाता। और इन गिलानी ब्रदर्स ने ही वापस से अपनी ही आर्मी को मारना शुरू कर दिया। ओके, सो इसी में जो इनके मिनिस्टर थे राम राय उनको भी पकड़ के मार दिया जाता है। ओके, सो जो गिलानी ब्रदर्स ने जो एक्शन ली थी इनके खिलाफ, जो अपनी आर्मी के खिलाफ हो गए, इट वॉज अ डिसाइसिव मोमेंट और विजयनगर एम्पायर हार जाता। ओके, राम राय वॉज beheaded, he was beheaded. ओके, सो बट दे नेवर न्यू, देखिए विजयनगर कभी अंपायर की आर्मी इतनी स्ट्रांग थी कि दे शुड हैव नेवर लॉस्ट अगर ये गिलानी ब्रदर्स अपनी ही आर्मी उनके खिलाफ ना हो जाए। ओके, इट हैज बीन 200 years since any army had defeated विजयनगर। विजयनगर का कैपिटल जो था इट वाज हम्पी। ओके, तो जो डेक्कन सल्तनत आए दे लूटेड प्लंडर्ड द सिटी, दे डिस्ट्रॉयड ऑल द शॉप्स टेम्पल्स
ओके, एंड लूट मार की, दे लूटेड हम्पी, ओके, एंड उसके बाद पूरी सुल्तान जो सिटी जिसको आग लगा दी उन्होंने। इसके बाद विजयनगर अंपायर अपना कैपिटल जो चांदगिरी में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद वेलोर में करते हैं, देन वो टूट जाते हैं, ओके, बिकॉज दे आर वीक, देन फ्यूडलिटीज में टूट जाते हैं। माइसोर, नायक्स केलदी, ओके, नायक्स ऑफ केलदी, नायक्स ऑफ वेलोर, ये सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। दस आपका जो विजयनगर अंपायर था, इट ऑल्सो ब्रोक, okay, so this was about everything about the Bahmani kingdom. Next video lecture would be on Bhakti movement, जो इसी टाइम पे चल रहा था, okay, but this covers all आपका Vijayanagar and Bahmani kingdom, it covers almost all the parts. What if there is any architecture aspect remaining, that will be covered in art and architecture class. Okay, thank you very much.